So, hello friend, how are you all? I am C. Chandan Singh and I welcome you all to my channel. Okay friend, in last lecture we have started the working capital management of CS executive. Okay, and we have discussed the inventory management, and today we are going to discuss on a receivable management comprehensively. Okay friend, today we will learn concept about the how to manage our receivable, because your your investment in receivable play a important role in your in your company growth. Okay, in your company growth. So you may see कि debtor will created by the credit sale, but this debtor represent your investment in working capital. Okay friend, so we have to discuss this concept comprehensively, and before moving to this lecture, first, if you are new to my channel, then please subscribe my channel. I am the first teacher on YouTube who has uploaded the full batch of financial management. And if you see the other channel, then you may find only few part of the lecture, and just you will just see the advertisement of the teacher. But here I have uploaded the full and final batch of my regular classes. Okay friend, because this all lecture I have to provide in the physical regular class, but due to the coronavirus situation I have not stopped my class, but I have started providing this all lecture to my students so that their study can't be discontinued, and also you can also take the advantage of this lecture. Okay friend, so let's move to the lecture. Let's see here. Receivable management means debtor का management. Okay, let's see here. So friend, what you have to learn in this chapter, you have to learn in this chapter so that your investment in current asset can also increase your wealth maximization. Okay, let's see here. Management of receivable refers to planning and controlling of debt owed to the firm from customer on account of credit sale. Okay friend, management of receivable refer to planning and controlling of debt owed to the firm from customer on account of credit sale. So management of receivable simply means the planning and controlling the debt owed to us from the customer on account of credit sale, and this is also known as trade credit management. Okay friend, and this is also known as the trade credit management. So we just not only focus on the management of investment in fixed assets, but also we should give your focus towards the current asset. The basic objective of management of receivable debtor is to optimize the return on investment on this asset. तो बेसिक ऑब्जेक्टिव आपके मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल का क्या होता है? वो होता है कि किस तरीके से जो रिसीवेबल में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके ऊपर आप रिटर्न को कैसे मैक्सिमाइज करोगे, और इसी पर्पज को हमें क्लियर किसमें करना है? रिसीवेबल मैनेजमेंट में. तो ये है आपका नोट नंबर 1 कंप्लीट. ओके, नाउ मूव टू दी नोट नंबर 2. अब नोट नंबर 2 में हम क्या देख रहे हैं? एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डेटर. एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डेटर, इसके फीचर्स क्या है दोस्तों? तो देखिए,
इसके अंदर सबसे पहला क्या है, क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी। तो नॉट ओनली सेल इज इंपॉर्टेंट, बट मैनेजमेंट ऑफ योर क्रेडिट पॉलिसी ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टुवार्ड्स द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द कंपनी। तो सो वी हैव टू decide the credit policy on the basis of proper analysis of sale, proper analysis of geographical location, proper analysis of customer base. Okay, so let's see here. Decision of credit standard, credit term and collection effort is included in credit policy. So what we are going to include in credit policy? Decision of credit standard, credit terms and collection effort. Okay, this seek to decide credit period, cash discount and other relevant matter. तो इसके अंदर क्या क्या चीज होता है बता दो। क्रेडिट पीरियड को डिसाइड करना, कैश डिस्काउंट कितना देना है वो डिसाइड करना एंड अदर रेलिवेंट मैटर। तो मे बी पॉसिबल इफ यू ऑफर दी हैंडसम कैश डिस्काउंट then your customer will move towards the cash purchase. Okay, credit period is generally stated in term of net days. क्रेडिट पीरियड को आप लोग किस चीज में मेजर करते हो, जनरली बता दो, नेट डेज में। और इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे द क्रेडिट टर्म में बी एक्सप्रेस्ड एज 3/5 नेट 60, 3/5 नेट 60। तो what is it mean? तो इसका मीन मतलब क्या होगा? This means that a 3% discount will be granted if the customer pay within 15 days. Okay friend, it means कि it means that if you made the payment within 15 days, then you will get the discount of 3%. And what does this 60 represent? So this 60 represent your credit period, overall credit period. And if he does not avail the offer, he must make payment within 60 days. So if customer is not going to avail this cash discount offer, then he has to make the payment within the 60 days. So these 60 days represent your overall credit period of debtor. Okay, now point number 2 पे credit analysis. So this require the finance manager to determine as to how risky is to advance credit to a particular party. तो क्रेडिट एनालिसिस में बेसिकली क्या होगा, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दिस क्रेडिट एनालिसिस। तो इन क्रेडिट एनालिसिस इंपॉर्टेंट रोल इज प्लेड बाय योर फिनांस मैनेजर, एंड योर फिनांस मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल डिटरमाइन द रिस्कीनेस ऑफ द एडवांस क्रेडिट गिवन टू अ पर्टिकुलर पार्टी। ओके, तो यहां पर फिनांस मैनेजर डिटरमाइन करेगा कि कितना रिस्की है क्रेडिट पे एडवांस देना टू अ पर्टिकुलर पार्टी। एंड नंबर 3, कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल। तो देखिए, दिस रिक्वायर फिनांस मैनेजर टू फॉलो अप डेटर एंड डिसाइड अबाउट अ सुटेबल कलेक्शन पॉलिसी। ओके फ्रेंड, तो यहां पे आपका फिनांस मैनेजर क्या करेगा, फिनांस मैनेजर डेटर का फॉलो अप करेगा। फॉलो अप मतलब डेटर का प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, वो एनालिसिस करेगा, और अपने एनालिसिस के बेसिस पे ही विल डिसाइड अबाउट अ सुटेबल क्रेडिट कलेक्शन पॉलिसी। एंड क्रेडिट पॉलिसी इज डिटरमाइंड फॉर मेंटेनिंग कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल। ओके, तो do you know, if you make your sale on credit, then there is
also a cost involved in this. There is also a cost involved in this. So you will say, what is the cost involvement in this? So friend, I will say, first of all, your fund will blocked in receivable. So here you will lose the interest cost known as the opportunity cost, and there is also a separate department who is responsible for administering the credit policy, credit sale. So here administration department will keep the record of the debtor, investigate he will perform the investigation of credit worthiness etc. So here administration department, your organization may incur the administration cost. So here administration cost also involve. Okay, and कलेक्शन कोस्ट, जब आप डेटर के पास जाओगे कलेक्शन के लिए तो वहां भी तो कुछ खर्चा होगा. एंड डिफॉल्टिंग कोस्ट यानी कि बैड डेट. तो ये चार कोस्ट आपके होते हैं. ये चार कोस्ट जो भी क्रेडिट पॉलिसी डिटरमाइन की जाती है वो इन चार कोस्ट के बेसिस पे. सबसे पहला रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल फंड सिंस रिसोर्स आर ब्लॉक्ड इन, रिसीवेबल अपॉर्चुनिटी कोस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कोस्ट, record keeping, investigation of credit worthiness etc. Factor determining credit policy. Note number 3, factor determining credit policy. Let's see here. Credit policy is an important factor determining both the quantity and quality of account receivable. So your credit policy play an important role of quantity and quality of account receivable. Okay friend, various factor are as follow. तो क्या क्या फैक्टर है? सबसे पहला, the effect of credit on the volume of sale. If you make your sale on credit, how much your company going to sell? तो voluminous of the quantity. Then the credit term also determine the credit policy. Cash discount, policy and practice of the firm for selecting credit customer. कि what is the policy and practice performed by your firm for selecting the credit customer. Paying practice and habit of customer. So this will also prove important factor for determining the credit worthiness of the debtor. And the firm policy and practice of collection. The degree of operating efficiency in the billing, record keeping and adjustment function, other costs such as interest, collection cost and bad debt etc. Okay friend, so this is your factor for determining the credit policy. Okay, let's see one time more. First of all, credit on the volume of sale, credit term, cash discount, policy and practice of the firm for selecting credit customer, paying practice and habit of customer, the firm policy and practice of collection, the degree of operating efficiency in the billing, record keeping and adjustment function, other costs such as interest, collection cost and bad debt etc. The firm may follow a lenient or stringent credit policy. तो फर्म आपका क्या करेगी? वो या तो lenient credit policy फॉलो करेगी या स्ट्रिंजेंट क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करेगी. तो अब बात आती है कि लीनियंट आपकी कंपनी किसके केस में होगी और स्ट्रिंजेंट किसके केस में. तो देखिए, लीनियंट, सेल ऑन क्रेडिट टू कस्टमर ऑन वेरी लिबरल टर्म एंड स्टैंडर्ड. तो यहां पे बहुत ही कम टर्म एंड स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम सेल करते हैं. और स्ट्रिंजेंट किसके लिए होता है? ओनली टू दोज कस्टमर हु हैव proper credit worthiness and who are financially sound. So if your customer are financial sound and credit worthiness of your customer is well, then you will follow the stringent credit policy. Approaches to evaluate credit policy. तो stringent credit policy में क्या मतलब होगा फ्रेंड?
जैसे यहां पे अगर आप दोगे 60 डेज, यहां पे अगर 60 डेज दोगे तो यहां पे 30 डेज ही दे दो, ये है। ओके, चलिए, अप्रोचेस टू इवेल्युएट क्रेडिट पॉलिसी, और यहां पे, यहां तक कि आप ये भी दिखा सकते हो कि अगर विद इन 30, इफ योर कस्टमर इज फेल टू पे पेमेंट विद इन 30 डेज देन इंटरेस्ट विल बी चार्ज, बट हियर इफ यू पुट द बर्डन ऑफ इंटरेस्ट देन योर कस्टमर विल मूव आउट। ओके, तो अप्रोचेस टू इवेल्युएट क्रेडिट पॉलिसी, तो देखिए क्रेडिट पॉलिसी को इवेल्युएट करने के क्या क्या अप्रोचेस हैं। ठीक है फ्रेंड, क्रेडिट पॉलिसी को इवेल्युएट करने के क्या क्या अप्रोचेस हैं यहां पे। देखिए सबसे पहला है टोटल अप्रोच के बेसिस पे, टोटल अप्रोच। इसमें हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे हाईएस्ट बेनिफिट प्रोपोजल, जो भी प्रोपोजल में बेनिफिट हाईएस्ट आएगा उसके बेसिस पे आप लोग इसको सिलेक्ट कर लोगे। तो देखिए स्टेटमेंट शोइंग इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, स्टेटमेंट शोइंग इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी पर्टिकुलर प्रेजेंट प्रोपोज्ड 1, प्रोपोज्ड 2, प्रोपोज्ड 3, प्रोपोज्ड 3। देखिए एक मिनट फ्रेंड, सॉरी, लेट्स सी क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल आप ले लोगे सबसे पहले, इसमें से क्या बाहर करोगे, वेरिएबल कॉस्ट, इसके बारे में आपको पता ही है। फिर आप लोग मूव करोगे अपने कंट्रीब्यूशन के ऊपर, ठीक है। फिर यहां से आप लोग बाहर करोगे फिक्स कॉस्ट, तो आप लोगों का आ जाएगा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहां से आप लोग बैड डेट, क्योंकि बैड डेट क्या होता है, फिनेंशियल, कैश डिस्काउंट, ये बाहर करोगे, ये सब फिनेंस के टर्म में। तो यहां से ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट, बैड डेट एंड कैश डिस्काउंट जब आप बाहर करोगे तो आपका आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप क्या बाहर करोगे, टैक्स बाहर करोगे, यह आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से अब आप माइनस क्या करोगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल। तो रिसीवेबल के ऊपर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा उसको आप लोग बाहर कर दोगे, उतना फंड तो आपका ब्लॉक रहेगा ना। तो ये माइनस करके जो आपका आएगा नेट बेनिफिट, नेट बेनिफिट, इसी बेनिफिट के ऊपर आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है कि अगर बेनिफिट आपका ज्यादा है कॉस्ट के कंपैरिजन में तो आप लोग इसको ऑप्ट कर लोगे। ठीक है, अब इसके कुछ नोट हैं कि कैसे आप लोग इसमें फिक्स कॉस्ट निकालोगे। ठीक है, ये देख रहे हो फिक्स कॉस्ट, आप लोग ये कैसे कैलकुलेट करोगे, ये यहां पे। तो देखिए हमें क्या करना है, जो भी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसमें से हम बाहर कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट में से जब वेरिएबल कॉस्ट आप बाहर करोगे तो क्या बचेगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बचेगा, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ऑन क्रेडिट अंडर प्रेजेंट पॉलिसी। तो जो प्रेजेंट पॉलिसी में जो नंबर ऑफ यूनिट जो सेल किया जा रहा है दोस्तों, उसी को मल्टीप्लाई करके आप लोग फिक्स कॉस्ट निकाल दोगे। और फिक्स कॉस्ट तो आपको पता ही है कि एक कैपेसिटी लेवल तक फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आना, चाहे आप सेल ज्यादा करो या कम करो या बिल्कुल ही ना करो, फिक्स कॉस्ट तो इनकर होता ही रहेगा। देन कम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आप क्या लोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल। देखना ध्यान से, यहां पे हम क्रेडिट सेल नहीं ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको निकालना है ना, वहां पे आप क्रेडिट सेल नहीं ले रहे हो, बल्कि क्रेडिट सेल के लिए टोटल कॉस्ट क्या आया, आता है ना आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। याद करो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो वो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है वो तो ओवरऑल सेल का होता है, टोटल सेल का भी होता है, कैश सेल का भी होता है, क्रेडिट सेल का भी होता है। लेकिन यहां पे जो हमें कॉस्ट लेना है वो लेना है खाली क्रेडिट सेल का, और इसको आप लोग मल्टीप्लाई करते हो कलेक्शन पीरियड से और डिवाइड कर देते हो 365 डेज या 360। और जनरली हम क्या लेके चलेंगे, 360, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ ना दे तो। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल इंटू में टोटल कॉस्ट अपॉन में टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल इंटू में कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 365 अपॉन में या फिर 360 इंटू में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या आपका इंटरेस्ट कॉस्ट जो भी होगा क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको लगा करके लाओगे। ठीक है जी, चलिए
अब देखो ये जो देख रहे हो ये हिस्सा, इस हिस्से पे ध्यान देना, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, जानते हो क्या है? यही है आपका इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन डेटर, समझ में आया? यही है आपका, ये जैसे मल्टीप्लाई करते हो ना, ये आपका इन्वेस्टमेंट इन डेटर आता है, और उस इन्वेस्टमेंट पे जब ये रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई करते हो तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका, होप सो समझ में आया हो, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। अब इसको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, और ये जो एग्जांपल, ये जो लिखा हुआ ना, इसी एग्जांपल से हम दो मेथड है यहाँ पे, एक टोटल अप्रोच और एक इंक्रीमेंटल अप्रोच, तो दोनों अप्रोच को मैं इसी एग्जांपल से कराऊंगा। तो देखिए एग्जांपल, ए ट्रेडर हुज करंट सेल आर इन रीजन ऑफ ₹6 लाख पर एनम। एक रीजन में जो ट्रेडर है उसका करंट सेल कितना है, 6 लाख पर एनम, एंड एन एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ 30 डेज, और उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है, 30 डेज, वांट टू परसू अ मोर लिबरल पॉलिसी टू इंप्रूव सेल। तो दोस्तों वो क्या चाहता है, वो परसू करना चाहता है लिबरल पॉलिसी टू इंप्रूव सेल, सेल को इंप्रूव करने के लिए लिबरल पॉलिसी करना चाहता है। तो देखिए क्या कहता है, ए स्टडी मेड बाय मैनेजमेंट कंसल्टेंट रिवील्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या चीज, देखो क्रेडिट पॉलिसी, 4 पॉलिसी वो लगा रहा है, ए बी सी डी। हमें क्या देखना है, हमें तो ये देखना है कि इन चारों पॉलिसी में ज्यादा बेनिफिट कहां पे आ रहा है, तो जहां पे ज्यादा बेनिफिट आएगा उसी पॉलिसी को आप लोग चूज कर लोगे। तो देखिए ये पहला पॉलिसी क्या है, ये है आपका इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड। वो क्या करना चाहता है कि 30 दिन था ना, तो उसको क्रेडिट पीरियड को बढ़ा देगा, और ये उससे अब क्रेडिट पीरियड बढ़ाने से सेल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और बैड डेट पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, प्रेजेंट डिफॉल्ट एंटिसिपेटेड। देखो अगर क्रेडिट सेल को हम 10 डेज से बढ़ाते हैं तो सेल में 30,000 की बढ़ोतरी और डिफॉल्ट 1.5%। अगर हम 20 डेज से बढ़ाते हैं तो इंक्रीज इन सेल 48,000 और प्रेजेंट डिफॉल्ट एंटिसिपेटेड कितना होगा दोस्तों, 2% होगा। ठीक है, और अगर ये 30 डेज होता है आपका, 30 डेज आप अगर क्रेडिट कलेक्शन पीरियड बढ़ाते हो तो इंक्रीज इन सेल 75,000 एंड प्रेजेंट डिफॉल्ट एंटिसिपेटेड 3%। और अगर 45 डेज से अगर आप बढ़ाते हो तो आपका इंक्रीज इन सेल 90,000 और प्रेजेंट डिफॉल्ट एंटिसिपेटेड जो है दोस्तों वो है आपका 4%। ओके डियर, देखिए द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹3। जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है आपका वो कितना है, ₹3 है, एंड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज ₹2.25, और एवरेज कॉस्ट कितना दोस्तों, 2.25, एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर ₹2। आ रहा समझ में? देखो यह आपका सेलिंग प्राइस है और ये है आपका एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, देख पा रहे हो? तो ये एवरेज मतलब क्या, टोटल कॉस्ट। तो इसमें से जब ये 2 माइनस करोगे ना तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आएगा 0.25, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल यूनिट से। तो देखो प्रेजेंट में कितना यूनिट है, देखो ध्यान से, अरे हाँ तो कहाँ गया भाई, हाँ 2.25 यूनिट कहाँ गया दोस्तों, एक मिनट, ओके हाँ सही है सही है। देखिए तो यहां पे जो 6 लाख जो आपका सेल है, 6 लाख जो सेल है, इसको इस सेलिंग प्राइस 3 से डिवाइड करोगे, 3 से, तो क्या आएगा आपका बता दो, प्रेजेंट का आ जाएगा ना, प्रेजेंट का यूनिट आ जाएगा आपका सोल्ड यूनिट। अब उसी को मल्टीप्लाई करोगे निकालने के लिए। फिर देखो द करंट बैड डेट लॉस कितना 1% एंड रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज 20%। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना डेटर में, उस पर कितना रिटर्न है 20% का। तो अज्यूम 360 डेज अ ईयर, हमने क्या अज्यूम किया 360 डेज अ ईयर। एनालाइज विच ऑफ द अबव पॉलिसी वुड बी रिकमेंडेड फॉर अडॉप्शन। तो आपको बताना है दोस्तों, आपको बताना क्या है, एनालाइज करना है विच ऑफ द अबव पॉलिसी वुड बी रिकमेंडेड फॉर अडॉप्शन। तो हमें कौन सा पॉलिसी एडॉप्ट करना है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन पर मूव करिए। ठीक है, सॉल्यूशन
स्टेटमेंट शोइंग इवेल्युएशन ऑफ डेटर पॉलिसी, ये आपका प्रेजेंट, ये प्रोपोजल ए, प्रोपोजल बी, प्रोपोजल सी, प्रोपोजल डी। ये रहा आपका ए पे, ए पॉइंट पे क्रेडिट सेल आपका ये आ गया, ठीक है। यहां से आपने क्या किया, टोटल कोस्ट, टोटल कोस्ट आपको बाहर करना है, टोटल कोस्ट बी आपको क्या करना है, बाहर करना है। तो ये टोटल कोस्ट अदर देन बैड डेट, तो ये बी क्या है, टोटल कोस्ट अदर देन बैड डेट। तो कैसे निकालोगे, सेल इंटू में 2/3, सेल इंटू में 2/3। अब ऐसा क्यों किया बता दो, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, ₹2 है ना, ₹2 है, और 3 क्या है, सेल प्राइस। तो सेल को जब 3 से डिवाइड करोगे तो यूनिट निकलेगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट निकलेगा। बात सही है ना, ₹2 क्या है आपका वेरिएबल कॉस्ट, और 3 क्या है, सेल प्राइस पर यूनिट। तो 6 लाख डिवाइड बाय 3 सेल प्राइस, तो ये आ गया आपका सोल्ड यूनिट, और यूनिट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 4 लाख, ठीक है। तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट इस तरीके से। और फिक्स कॉस्ट आप लोगों ने जो तो 50,000 ही रहेगा, सेम सेम सेम, इसमें तो कुछ चेंज होना नहीं है। 0.25 इंटू में 2 लाख, ये 50,000 ही रहेगा। टोटल कॉस्ट 450, ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया। और ये आ गया आपका सी पे बैड डेट, तो 6 लाख का 1%, यहाँ पे 1.5%, यहाँ पे 2%, यहाँ पे 3%, और यहाँ पे 4%। तो यह आ गया आपका बैड डेट, ठीक है फ्रेंड। बैड डेट आया, उसके बाद आप लोग निकाल लोगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यानी कि ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है फ्रेंड। तो इस क्रेडिट सेल में से ये बी वाला सी वाला ये जो कॉस्ट बाहर करोगे तो आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 144 एट दिस। अब आप लोग बाहर करोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नोट नंबर 2 पे देखो। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू में क्रेडिट सेल यूनिट, देखिए 2.25 माइनस 2, और ये क्रेडिट सेल यूनिट कैसे निकलेगा, 6 लाख डिवाइड बाय 3, ये कितना आ गया 50,000। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलेगा, आपको लेना है टोटल कॉस्ट, क्या लेना है दोस्तों, टोटल कॉस्ट लेना है, मल्टीप्लाई करोगे कलेक्शन पीरियड से और डिवाइड करोगे 360 से, क्या करोगे 360 से डिवाइड करोगे, और रेट ऑफ रिटर्न। तो देखो टोटल कॉस्ट की बात करोगे दोस्त, तो देखो टोटल कॉस्ट क्या है आपके डेटर में, यही है ना, ये 450, ये जो निकला है आप लोगों ने निकाला है। तो देखो यहां पे टोटल कॉस्ट आ गया आपका प्रेजेंट में 450, 30 डिवाइड बाय 360, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट आ गया टोटल, इसको 20 पॉइंट मल्टीप्लाई किया, ये 7500। इसी तरीके से ए बी सी डी टोटल कॉस्ट पकड़ लोगे आप लोग, कलेक्शन पीरियड से मल्टीप्लाई और टोटल 360 से डिवाइड। तो ये जब ये काम, जब आप लोग ये वाला काम कर लोगे, ये वाला काम, तो यहां आप लोगों को क्या निकलेगा, इसको बोलोगे आप इन्वेस्टमेंट इन डेटर, और यहां पे रेट मल्टीप्लाई करोगे, और ये आ गया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसको हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। तो नेट बेनिफिट आ गया आपका। अब आप बताओ सबसे ज्यादा नेट बेनिफिट कहां पर है, इसमें प्रोजेक्ट ए में, तो आप रिकमेंडेशन क्या दोगे, प्रपोज्ड पॉलिसी ए शुड बी अडॉप्टेड। तो हम किसको अडॉप्ट करेंगे, पॉलिसी ए को। और पॉलिसी ए को हम क्यों अडॉप्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहां पे प्रॉफिट ज्यादा है। अब आपका आता है इंक्रीमेंटल अप्रोच, इंक्रीमेंटल अप्रोच, ठीक है फ्रेंड। नाउ कम्स योर इंक्रीमेंटल अप्रोच। तो देखिए ये फॉर्मेट आपका, ये फॉर्मेट जो आप लोगों को देखो, जो मैं बता रहा हूं ना फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को अच्छे से समझ लेना। देखो अब सीएस एग्जीक्यूटिव आप लोगों का तो एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू में तो वैसे इस फॉर्मेट का कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग इसको कर लेना, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोगों का ना बीकॉम के भी पेपर होंगे, तो बीकॉम के पेपर में भी ये चैप्टर बैठा हुआ है, तो वहां पे आपको फायदा मिल जाएगा। अगर कुछ मेरे सीए वाले दोस्त देख रहे हो तो वो भी इसको कर सकते हैं, सीएमए वाले देख रहे हो तो वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कॉन्सेप्ट सबका सेम ही है। हालांकि लेक्चर में स्पेसिफिक में सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ना, अब क्योंकि मैं सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ज्यादा नहीं कराऊंगा, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव है, तो डिस्क्रिप्टिव पे टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि हर कॉन्सेप्ट के साथ
कुछ अच्छे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को मैंने रखा है जिससे कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाए। तो देखिए, अब एक हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा टोटल अप्रोच पे पढ़ा है ना, ये वाला हमने कैसे पढ़ा है, कहां गया भैया, ये रहा देखो टोटल अप्रोच। अब हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंटल अप्रोच। तो इंक्रीमेंटल अप्रोच से कैसे, देखिए इंक्रीमेंटल अप्रोच में क्या लोगे आप लोग, जो भी आपका क्रेडिट सेल यहां पे दिया होगा इसमें से आप क्या निकाल लोगे, इंक्रीमेंटल क्रेडिट सेल। इंक्रीमेंटल कैसे निकालोगे, प्रेजेंट में से इसको बाहर करोगे इंक्रीमेंटल, इसमें से इसको इंक्रीमेंटल, इसमें से इसको इंक्रीमेंटल, ठीक है। फिर आप इसी तरीके से इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल भी निकाल लोगे, जो भी कॉस्ट आएगा उसमें से एक करंट, लास्ट वाले में से करंट को माइनस कर देना, तो आपका ये कॉस्ट आ जाएगा, जो भी वेरिएबल फिक्स कॉस्ट हो टोटल करके। इसके बाद जो बैड डेट इंक्रीमेंटल होगा वो आपको माइनस करना है, इंक्रीमेंटल कैश डिस्काउंट होगा उसको भी क्या कर दोगे, बाहर कर दोगे, ठीक है। फिर आपका आएगा इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, तो दिस, और फिर आप बाहर करोगे टैक्स, तो ये आपका आ गया इंक्रीमेंटल पैट ए पे क्या आ गया दोस्तों एक मिनट, 1 सेकंड पे, प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को। चलिए आइए फ्रेंड देखिए, देखो फिर इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपका आ गया, यहां से टैक्स बाहर करोगे, ये आपका आ गया इंक्रीमेंटल पैट, ठीक है, इंक्रीमेंटल पैट आ गया। अब आप इसमें से क्या करोगे, इसमें से बाहर करोगे रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, तो जो भी आपका इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट होगा उस पर रिक्वायर्ड रिटर्न निकालोगे, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे आप लोग, सबसे पहले आप लोगे कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, जो भी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल होगा दोस्तों उसको ले लोगे, यहां पे बी पे लोगे आप लोग क्रेडिट पीरियड, सी पे लोगे इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल, कैसे निकलेगा इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल, इसके ऊपर बी से मल्टीप्लाई करोगे और 365 से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन में जितना दिया होगा वो हम ले लेंगे। फिर इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल, ये आ जाएगा कॉस्ट, इसी को आप माइनस करते जाओगे इंक्रीमेंटल आ जाएगा। फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज आप यहां पे रखोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो रिक्वायर्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट टी क्या, ये वाला इंक्रीमेंटल इनटू में ई, ये आ गया आपका। अब आ गया आपका इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट, यानी कि ए माइनस बी, इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट आ गया आपका। तो एडवाइज करना है हायर प्रॉफिट विल बी सिलेक्टेड, तो आप दोस्तों किसको सिलेक्ट करोगे, बता दो किसको करोगे सिलेक्ट, हायर प्रॉफिट विल बी सिलेक्टेड, ओके। चलिए अब देखो, ये जो पिछला एग्जांपल था ना, अब मैं आपको इंक्रीमेंटल की बात बताता हूं कैसे इंक्रीमेंटल आप लोग निकालोगे। इस क्वेश्चन को देखो पहले, देखो सेल देख रहे हो, ये नेट सेल दिया है ना निकाल के, तो यही आपका क्या है, यही है आपका इंक्रीमेंटल सेल, और ये क्या है प्रेजेंट डिफॉल्ट, ये आपका इंक्रीमेंटल बैड डेट है। आया समझ में,
यही तो है आपका इंक्रीमेंटल डेट। आइए देखिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग यहां पे पुट करते हैं, पर्टिकुलर प्रेजेंट ए बी सी डी, प्रोपोजल ए बी सी डी। तो देखिए अब पहले ए पे मुझे क्या निकालना है, इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं रखूंगा इंक्रीमेंटल क्रेडिट सेल, वो जो दिया हुआ था। अब ये पहले प्रेजेंट में तो कोई इंक्रीमेंटल होगा नहीं, तो यहां पे हमें लेने की जरूरत भी नहीं है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट की अगर बात करोगे तो देखो इसमें क्या क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। तो 4,20,32, ठीक है, और यहां पे 50, और ये आपका वेरिएबल कॉस्ट आ गया। और रही बात फिक्स कॉस्ट की, तो फिक्स कॉस्ट तो इंक्रीमेंटल दोस्तों होता ही नहीं है। क्यों, इंक्रीमेंटल क्या होता है, जो चेंज हो, जहां पे डिसीजन मेकिंग के चलते चेंज आए। तो यहां तो कोई चेंज ही नहीं होगा, चाहे कितना भी यूनिट बढ़ा लो, ये तो 50,000 ही रहेगा, तो यहां कुछ होने वाला है नहीं। तो ये आपका आ गया 450, 20, 32, 50 एंड 60। तो ये इंक्रीमेंटल नहीं है, इंक्रीमेंटल आपका ये इतना पोर्शन इंक्रीमेंटल है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब आपका इंक्रीमेंटल बैड डेट, उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा क्या आएगा आपका, इंक्रीमेंटल बैड डेट ही आएगा। देखो देख रहे हो ना, ये इंक्रीमेंटल नहीं समझे, देखो यहां पे ये बैड डेट, देखो भाई बैड डेट कितना है, देखो ध्यान से, बैड डेट कितना है 9450, यहां पे 6000, तो इसमें से इसको बाहर करोगे तो 3450, फिर इसमें से इसको बाहर करोगे, फिर इसमें से इसको बाहर करोगे यहां, और यहां के लिए इसमें से इसको बाहर करोगे। तो यही तो है इंक्रीमेंटल, आगे वाले में से पीछे वाले को बाहर कर दोगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये आ गया आपका इंक्रीमेंटल बैड डेट। फिर आपका आता है, देख पा रहे हो ना, एक मिनट, 27,600 माइनस, और या फिर आप लोग ना देखो सीधा भी आप लोग कर सकते हो। कैसे, देखो आपका इंक्रीमेंटल सेल दिया ही हुआ है, देख रहे हो ना, इंक्रीमेंटल सेल तो आपको दिया ही हुआ है। तो इसी को सीधा क्या करोगे, बैड डेट के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करोगे। देखो बैड डेट का परसेंटेज कितना है, यहां पे तो हमें अलग से करने की, देखो 1.52 है, ठीक है फ्रेंड। देखिए आप लोगों ने क्या किया, ये 30,000 है, 1.5% दिस, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे जो भी परसेंटेज दिया हुआ स्पेसिफिक, तो इससे आपको क्या निकल के आ जाएगा, आपका इंक्रीमेंटल बैड डेट आ जाएगा, ठीक है। और इंक्रीमेंटल बैड डेट एक बार जब आपका ये दोस्तों निकल के यहां पे आ गया, तो फिर आप लोग क्या करोगे, अपना काम करोगे, इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी। तो ये आपका आ गया इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और अब निकालोगे रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, ये आ गया आपका। कलेक्शन पीरियड आपका 30, 40, 50, 60, 75 दिया ही हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल कैसे निकाल लोगे, देखो ए गुना बी डिवाइड बाय 360, ये आ गया आपका। अब आप इसका इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट निकाल लो रिसीवेबल का, देखो इसमें से ये बाहर करो, ये आ गया, 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 ठीक है। फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20, तो रिक्वायर्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा आपका, 294458899167 एंड 13750। ये आपका आ गया नेट बेनिफिट। तो किसको चूज करोगे, प्रपोजल ए शुड बी सिलेक्टेड ड्यू टू दी हायर बेनिफिट, ठीक है दोस्त। चलिए तो ये आपका टोटल अप्रोच से और इंक्रीमेंटल अप्रोच
दोनों से ही हमने इसको क्या कर लिया, कवर्ड कर लिया। ठीक है, ठीक है दोस्त, चलिए। एक मिनट, एक मिनट, आ रहा समझ में? अगर डाउट आए तो जरूर पूछना मेरे से, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल में दोस्तों ये होता है कि पीछे वाले में से आगे वाले को हम क्या करते हैं, पार कर देते हैं। चलिए फ्रेंड, फिर ये आपका होता है कंप्लीट। और अब हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट सेगमेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट पे देखना भी जरूरी है ना। देखिए, नाउ कम्स योर नोट 5, यानी कि रिसीवेबल फिनेंसिंग। रिसीवेबल फिनेंसिंग, तो अभी मैं 2 मिनट का आप लोगों को ब्रेक देता हूँ, थोड़ा ब्रेक ले लो, उसके बाद ये पार्ट में कंप्लीट कराता हूँ, ठीक है। तो अभी तक तो हमने क्या निकला, नेट बेनिफिट देखा। अब ये रिसीवेबल की कुछ फिनेंसिंग है, ये कुछ मेथड है फिनेंसिंग के और कुछ बेसिक चीज़ें, तो ये आपको मुझे दिखाना है, कराना है। इस पर भी हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी। इसमें अब ध्यान रखना, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं फैक्टरिंग सर्विसेज में, लोगों को ना समझ में नहीं आता ये। तो मैं आप लोगों को ना जितने अच्छे से समझा दूंगा कि कभी आप लोगों को गलती नहीं होगी। चलिए आप लोग देखिए जब तक। क्या
चलिए फ्रेंड आइए, लिया ब्रेक आप लोगों ने, आ जाइए आप लोग, देखिए ठीक है ना फ्रेंड। अच्छा उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? देखो इंक्रीमेंटल में ना इंक्रीमेंटल में ना आप लोग दिक्कत मत खाना, इंक्रीमेंटल भी आसान है। अब जनरली देखो, अब बीकॉम में तो कोई ऐसा तो पूछेगा नहीं कि इंक्रीमेंटल, अगर स्पेसिफिक बोल दे कि इंक्रीमेंटल अप्रोच से लो तो फिर आपको इंक्रीमेंटल के बेसिस पे ही लेके चलना होगा। लेकिन देखो इंक्रीमेंटल में कुछ है नहीं, वैसे बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है ना कि जो भी प्रपोजल, देखो जैसे ए का आप निकाल रहे हो तो क्या करोगे आप लोग बताओ, इसमें प्रेजेंट वाले से माइनस कर देना। जैसे ये बेड डेट था ना, बेड डेट, ये जो भी आप लोग ये देख रहे हो ना, ये देखो यहाँ पे ये जो बेड डेट इतना निकल निकल के जो आया ये, अब आप लोगों को डाउट आ रहा होगा कि जरूर कैसे आया, तो देखो इसमें ना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है दोस्तों। देखो यहाँ पर 9450 है प्रपोजल ए में, 6000 माइनस करो 3450, 1296 इसमें से प्रेजेंट माइनस करो, यहां से ये माइनस करो और यहां से ये माइनस करो, तो आपको क्या जाएगा, इंक्रीमेंटल बेड डेट। चलिए आइए, ठीक है ना, चलो फिर भी डाउट हो तो पूछना जरूर। अब आइए, अब ये हमारा लास्ट सेगमेंट होने जा रहा है, रिसीवेबल फिनेंसिंग। तो देखो रिसीवेबल को फिनांस आप कैसे करते हो जानते हो ना। तो अभी तक जो हमने पढ़ा ना दोस्तों वहां पे, तो वो मेजर हमने क्या पढ़ा, हमने तो खाली डेटर ही पढ़ लिया ना हमने मेजर, बाकी तो एक्स्ट्रा हमने पढ़ा नहीं। तो यहां पे हम लोग फिनांसिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो जो हमने पढ़ा था ना अभी पीछे जो, वहां पे तो हम लोग ये देख रहे थे कि भैया क्रेडिट पॉलिसी हम अडॉप्ट करें या नहीं करें, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे हमें फिनांसिंग पढ़ना है कि डेटर को भी कैसे यूज किया जाता है फिनांसिंग के लिए। तो देखो ध्यान से, तो यहां फिनांसिंग में आपके बुक में तो केवल फैक्टरिंग दिया है, लेकिन ये दो टाइप का होता है, एक होता है प्लेजिंग और एक होता है फैक्टरिंग। लेकिन मैं आप लोगों को दोनों बता देता हूं, ठीक है, प्लेजिंग एंड फैक्टरिंग। देखो फ्रेंड, प्लेजिंग में क्या होता है, प्लेजिंग का मतलब देखो, इसको पढ़ो, पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा। देखो इन प्लेजिंग फर्म रिसीवेबल इज यूज्ड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी टू फिनांस इट शॉर्ट टर्म लोन। तो देखो जब आप टर्म लोन लेके जब आते हो ना, टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन जब आप लोग लेके आते हो, तो उसमें क्या करते हो आप लोग, अपने फिक्स्ड एसेट को क्या करते हो, सिक्योरिटी के तौर पे रखते हो, उसको तो बोलोगे कोलेटरल सिक्योरिटी। लेकिन यहां पे क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन के लिए आप अपने डेटर को रख देते हो, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जो आपका लेंडर जो होगा ना, लेंडर वो स्क्रूटनी करेगा आपका, क्या स्क्रूटनी करेगा, क्वालिटी ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, वो अकाउंट रिसीवेबल की क्वालिटी को स्क्रूटनी करेगा कि भैया पे करने में कितने सक्षम है डेटर, रिकवरी कितनी जल्दी होती है, ठीक है। एंड फिक्सेस द परसेंटेज ऑफ फिनांसिंग, और वो फिनांसिंग का एक परसेंटेज फिक्स कर देंगे। तो क्वालिटी जब एक बार वो मेजर कर लेंगे तो उसके बाद आपको डेटर के अगेंस्ट में लोन दे देंगे, जो भी हो परसेंटेज की बेसिस पे। तो विच रेंजेस अराउंड 50 to 90%। तो बैंक दर बैंक डिपेंड होता है, लेकिन वो 50 से 90% के बीच में ही होता है, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स ईज एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू दी बोरोवर। ये बोरोवर क्या करता है, ईज एंड फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सिंस रिसीवेबल इज मोस्ट लिक्विड एसेट, क्योंकि जो दोस्तों क्या होता है बता दो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लिक्विड एसेट होता है। एंड इट इन्वॉल्व, बट एक इसका नुकसान भी है, इट इन्वॉल्व हाई कॉस्ट ऑफ फिनांसिंग। यहां पे फिनांस का कॉस्ट काफी हाई होता है, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान देना। तो ये है आपका ओवरऑल प्लेजिंग का कॉन्सेप्ट। आइए फैक्टरिंग की बात, ठीक है ना। प्लेजिंग का मतलब समझ गए आप लोग क्या करोगे, अपने डेटर को एज ए सिक्योरिटी रखोगे, और किस अगेंस्ट में, शॉर्ट टर्म लोन के अगेंस्ट में, ठीक है। फैक्टरिंग की बात करते हैं। तो देखिए तो देखो फैक्टरिंग में क्या होता है कि यहां पे ना कुछ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो एज ए फैक्टर रजिस्टर होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम झंझट से बचने के लिए, हम लोग पता क्या करते हैं, झंझट से बचने के लिए हम लोग अपने डेटर को उनको सेल कर देते हैं, किसको, फैक्टरिंग वालों को। और फैक्टरिंग वाले क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट में हमें एडवांस दे देते हैं। हाँ, इंटरेस्ट वो लेते हैं हमसे, वो हमसे इंटरेस्ट भी लेते हैं, प्लस में कुछ रिजर्व भी कुछ अपना कॉन्टिजेंसी रिजर्व भी काट के रखते हैं, प्लस में कुछ कमीशन भी चार्ज करते हैं, तो कुछ उनका चार्जेस भी होगा, ठीक है। तो इन फैक्टरिंग अरेंजमेंट रिसीवेबल इज सोल्ड टू द फैक्टर और फाइनेंशियल एजेंसी। ए फैक्टर इज ए फर्म डेट एक्वायर द रिसीवेबल ऑफ अदर फर्म। तो फैक्टर क्या होती है, एक फर्म होती है जो कि अदर फर्मों के रिसीवेबल को दोस्तों एक्वायर करते हैं। तो देखिए द फैक्टरिंग एजेंसी बियर दी राइट ऑफ कलेक्शन एंड सर्विसेज दी अकाउंट फॉर ए फी।
ठीक है फ्रेंड। तो फैक्टरिंग क्या करती है, वो कलेक्शन के राइट को बियर करता है और इसीलिए वो अपने सर्विसेज के लिए क्या करता है, फी चार्ज करता है। देखो यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल, यहां पे देखो दोस्तों, ये फर्म है, फर्म ने क्या सेल किया इसको, गुड्स, किसको, कस्टमर को सेल किया, ठीक है ना। अब क्या होता है, जो फर्म होता है ना, अब उसको मान के चलो अचानक से फर्म को पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, सीधा जाके फैक्टर को अपना डेटर सेल कर देगा और इसके बदले में फैक्टर क्या करेगा, एग्रीड अपॉन परसेंटेज ऑफ पेमेंट देगा। जो भी एग्रीमेंट बनेगा उस हिसाब से परसेंटेज ऑफ पेमेंट दे देगा और उसके बाद कस्टमर क्या करेगा, टाइम आने पे वो फैक्टर को जाकर के कस्टमर डायरेक्ट क्या करेगा, अपना पेमेंट देगा। और नहीं दोगे तो फिर फैक्टर आकर के आपकी रिकवरी करेगा, ठीक है। तो चलिए अब ये फैक्टर में देख लिया, तो अब हम देख लेते हैं कि इस फैक्टर का एडवांटेज क्या है। देखो एडवांटेज फैक्टर का, इमीडिएट कन्वर्जन ऑफ रिसीवेबल इनटू कैश, बात सही है ना, तुरंत कैश आपको मिल जाता है। एंड फैक्टरिंग अलाउ द फर्म टू यूज कैश फॉर द ग्रोथ नीड ऑफ द बिजनेस। तो फैक्टरिंग क्या करता है, फर्म को अलाउ करता है यूज ऑफ कैश करना फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। तो देखो फॉर्मेट फॉर इवेल्युएटिंग फैक्टरिंग प्रोपोजल, तो फॉर्मेट कैसे बनाओगे फैक्टरिंग प्रोपोजल के लिए। और आप लोगों को दोस्तों मैं अभी पहले ही बोल देता हूं, 10 मिनट के लिए, अगला 10 मिनट प्योर हाई कंसंट्रेशन बना लो। 10 मिनट आप मेरे को दे दो और मैं 10 मिनट में आपका ये फैक्टरिंग रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा ना, मैं हमेशा के लिए सोल्व कर दूंगा। तो यहां पे 10 मिनट फोकस, बिल्कुल हाई कंसंट्रेशन का फोकस बना लेना। उसके बाद आपको जीवन में कभी फैक्टरिंग की दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि यहां बच्चों को ना कैलकुलेशन की दिक्कत बहुत आती है, तो वही कैलकुलेशन की दिक्कतें मैं आपके यहां पे सोल्व करने जा रहा हूं। देखो ध्यान से, पर्टिकुलर रुपीज, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप लोग क्या निकालोगे, सबसे पहले आप ये देखोगे एनुअल सेविंग या बेनिफिट आपको क्या होगा। फैक्टरिंग सर्विसेज अगर आप लोगे तो क्या क्या बेनिफिट होगा। तो देखो बेनिफिट क्या होगा, अगर आप फैक्टरिंग सर्विस नहीं लेते तो आपको क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन पे काफी खर्चा बियर करना पड़ता ना, लेकिन अब ये लेने से क्या होगा, ये टेंशन आपका दूर हो गया, तो ये चला गया फैक्टर की तरफ, तो यहां पे आपको सेव हो गया, है ना, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट आपका सेव हो गया। उसके बाद बैड डेट का खतरा अब कौन बियर करेगा, फैक्टर बियर करेगा, तो आपके पास से खतरा चला गया, तो ये भी एक बेनिफिट। फिर इंटरेस्ट सेव्ड ड्यू टू रिडक्शन इन एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड में रिडक्शन होने से आपको क्या होगा, इंटरेस्ट का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। जो इंटरेस्ट जो आपने लूज किया होगा ब्लॉक फंड में, अब वो आपका सेव होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अप्लीकेबल होगा तभी। तो देखो अब यही इंटरेस्ट आप लोग कैसे निकालते हो, तो देखो कैसे निकालते हो, कॉस्ट ऑफ एनुअल क्रेडिट सेल, जो भी क्रेडिट सेल का कॉस्ट होगा ना, उसको परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट से आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है फ्रेंड। क्या करोगे, परसेंटेज ऑफ उससे क्या कर दोगे आप लोग, मल्टीप्लाई कर दोगे। और अब तो देखो, अब प्लस में पीरियड से भी तो मल्टीप्लाई करोगे ना, तो पीरियड कैसे मल्टीप्लाई करोगे, जो आपका प्रेजेंट कलेक्शन पीरियड होगा उसमें से बाहर कर दोगे न्यू कलेक्शन पीरियड, ठीक है ना। तो जो भी न्यू कलेक्शन पीरियड डिटरमाइन होगा प्रेजेंट में से बाहर कर दोगे, तो उतने दिन का आपका फंड रिलीज हो जाएगा और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट की सेविंग आ जाएगी, ये वाली सेविंग, ठीक है ना। आ रहा समझ में ना। देखो पहले मान के चलो 60 दिन था और फैक्टर लगाने से वो हो गया केवल 40 दिन का, तो अब 20 दिन तो आपका फंड ब्लॉक नहीं रहेगा ना, सोच के देखो 20 दिन तो ब्लॉकेज रहेगा नहीं, तो 20 दिन का फंड रिलीज होगा, तो वो आपका क्या है, इंटरेस्ट का सेविंग डिवाइड बाय 360, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा टोटल, यही है आपका सेविंग, ठीक है। देखो अब मैंने आपको नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बना के दिया है, तो यहां पे ना कोई रोने वाली बात नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है, आई बात समझ में। फिर आगे देखो, उसके बाद एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म, देखो दोबारा दिखा देता हूं, कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की सेविंग, अवॉइडेंस ऑफ बैड डेट की सेविंग और इंटरेस्ट सेव्ड ड्यू टू रिडक्शन इन एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है। ये आपका यहां पे आ गया, ये आ गया आपका टोटल। अच्छा यहां पे ना डैश ऐसे कट का निशान दे देना, मैंने यहां पे दिया नहीं है, देना मैं भूल गया हूं, ये आप लोग कर लेना, ठीक है। तो ये आपका आ गया टोटल। आइए अब एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, अब फैक्टरिंग लोगे तो बेटा कुछ खर्चा भी तो बियर करना पड़ेगा ना, तो वो भी देख लो कैसे। तो देखो सबसे पहले आपको बियर करना पड़ेगा फैक्टरिंग का कमीशन,
तो फैक्टरिंग वाले कमीशन तो लेंगे ही ना, बिल्कुल लेंगे। तो कैसे लेंगे? जो भी आपका एनुअल क्रेडिट सेल होगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज ऑफ कमीशन से। क्या मल्टीप्लाई कर दोगे? परसेंटेज ऑफ कमीशन से, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज बाय फैक्टर ऑन एडवांस। तो जो फैक्टर आपको एडवांस देगा तो उस एडवांस पे दोस्तों फैक्टर क्या करेगा? इंटरेस्ट भी लेगा। क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। तो देखो, तो अब यहां पे बात आती है कि इंटरेस्ट लेगा किसके ऊपर, ये मेजर बात है। तो कैसे लोगे आप लोग? देखो, अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस। क्या देखोगे आप लोग? आप देखोगे अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस, कि कितना अमाउंट अवेलेबल है एडवांस देने के लिए। तो देखो, मैं आपको बता देता हूं कितना अवेलेबल होगा। जो भी क्रेडिट सेल होगा उसमें से फैक्टर अपना क्या करेगा? कमीशन काट लेगा। और अगर कुछ कॉन्टिजेंसी रिजर्व अगर बना रखा है रिस्क के लिए, तो उसको भी आप लोग क्या कर दोगे? बाहर। तो जो नेट बचेगा ना, वही आपको फैक्टर पे करेगा। तो देखिए, अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस इनटू में कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 360 डेज इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा टोटल। और फिर नेट एनुअल बेनिफिट आप लोग निकाल लोगे ए माइनस बी करके। आया समझ में? देखो, अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस इनटू में कलेक्शन पीरियड अपॉन में 360 इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब ये अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस कैसे निकालोगे वो आपको मैं दिखाता हूं। देखो, नोट नंबर 1 पे देख पा रहे हो, अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस एनुअल क्रेडिट सेल आपने लिया, इसमें से आपने बाहर किया फैक्टरिंग कमीशन और यहां से बाहर किया फैक्टरिंग रिजर्व। यह आपका आ गया एनुअल अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस। अब बताती है रेट, ये नोट 2 देखो क्या है, ये कभी कभी ना क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रेट ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म निकालो। क्या पूछेगा वो आपसे? वो आपसे पूछ लेगा रेट ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द फर्म। तो देखो कैसे निकालोगे आप लोग? नेट एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। देखो, नेट एनुअल कॉस्ट क्या है? यही है ना, ये वाला जो कॉस्ट है, नेट एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग डिवाइड बाय अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस। अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस उससे डिवाइड करोगे, इनटू में 100 करोगे। या फिर आप क्या करोगे? नेट एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग डिवाइड बाय एडवांस टू बी पेड इनटू में 100। अब आप बोलोगे एडवांस टू बी पेड क्या है? तो देखो यहां पे स्टार लगा के यहाँ पे स्टार को डिफाइन किया। एडवांस टू बी पेड क्या है दोस्तों? अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस माइनस में इंटरेस्ट डिडक्टेड बाय द फैक्टर। फैक्टर क्या करेगा? वो एडवांस में अपना इंटरेस्ट डिडक्ट कर लेगा और इस तरीके से आपको क्या निकल जाएगा? एडवांस टू बी पेड। तो देखिए, अब बात आती है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। ये फैक्टरिंग को एक्सेप्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे, तो वो भी देख लो आप लोग। एक्सेप्ट कब करोगे दोस्तों? एक्सेप्ट हम तब करेंगे जब इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग लेस देन होगा किसके? एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो जो भी आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगा अगर उससे लेस है आपका इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, या फिर आपको नेट एनुअल बेनिफिट हुआ है, एनुअल बेनिफिट हुआ है आपको, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लो। और अगर आप बात करोगे दोस्तों रिजेक्ट की, आप लोग क्या करोगे? रेट ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग ग्रेटर देन एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो अगर कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग का रेट ही आपका ग्रेटर हो गया तो आप क्या कर दोगे? इसको रिजेक्ट कर दो। या फिर एनुअल बेनिफिट ना होकर के कॉस्ट का और लॉस हो रहा हो तो भी आप लोग इसको क्या कर दोगे? रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। और अब इसको एक खूबसूरत सा एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको सप्लीमेंट कर लेते हैं और उसके बाद आप लोगों का फैक्टरिंग का प्रॉब्लम खत्म। तो देखिए एग्जांपल देखिए, सबसे पहले ए फैक्टरिंग फर्म हैज क्रेडिट सेल ऑफ 360 लाख, 360 लाख का क्रेडिट सेल है एंड इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना दोस्तों? 30 डेज। तो हम एवरेज बेसिस पे तो निकालेंगे। एंड फाइनेंशियल कंट्रोलर एस्टिमेट बैड डेट लॉसेस आर अराउंड 2% ऑफ क्रेडिट सेल। तो फाइनेंशियल कंट्रोलर ने क्या बोला कि बैड डेट लॉस क्रेडिट सेल का 2% होगा। तो 360 इंटू में इसका पहले एवरेज निकालोगे, उसका 2% क्या आ जाएगा? बैड डेट लॉस। तो फैक्टरिंग में हमें क्या हो जाएगा? इसका सेविंग हो जाएगा। फर्म स्पेंड करती है 1,40,00,000 एनुअली ऑन डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आपको हर साल 1,40,000 करना पड़ता है। तो दिस कॉस्ट कंप्राइजेस ऑफ टेलीफोनिक एंड फैक्स बिल अलोंग विद द सैलरी ऑफ स्टाफ मेंबर, अलोंग विद द सैलरी ऑफ स्टाफ मेंबर, ठीक है। एंड दीज आर दी अवॉइडेबल कॉस्ट। और ये आपका क्या होता है दोस्तों? अवॉइडेबल कॉस्ट होता है, ठीक है ना। इसको हम अवॉइड कर सकते हैं।
तो ए फैक्टरिंग फर्म एज ऑफर टू बाय द फर्म रिसीवेबल, एक फैक्टरिंग फर्म में उसने क्या ऑफर किया कि हम आपके रिसीवेबल खरीदते हैं, आपको एडवांस देंगे, तो फर्म फैक्टर विल चार्ज 1% कमीशन, 1% कमीशन चार्ज करेगा एंड विल पे एन एडवांस अगेंस्ट रिसीवेबल ऑन एन इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम आफ्टर विद होल्डिंग 10% एट रिजर्व। वो एक रिजर्व के रूप में 10% काटता है और बाकी वो क्या करता है, एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है, कितने से, 15% पर एनम से। तो एनालाइज व्हाट शुड द फर्म डू, अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। तो आप बताओ फर्म को क्या करना चाहिए, और हमने क्या अज्यूम किया, 360 डेज इन ए ईयर अज्यूम कर लिया। तो देखिए सॉल्यूशन, देखो अब वो 360 तो पूरा था ना, पूरा ही क्रेडिट, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे यहां पे एवरेज लेवल ऑफ रिसीवेबल। तो 360 इंटू में 30 क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट पे 30 डेज का है तो हम 30 डेज का ही तो देखेंगे, तो 30 डिवाइड बाय 360, तो ये कितना हुआ, 30 लाख। ठीक है, फैक्टरिंग कमीशन कितना हो जाएगा, 30 इंटू में 1, तो ये 30,000 आ गया, और रिजर्व कितना रखा, 30 लाख इंटू में 10%, तो ये 3 लाख का रिजर्व आ गया आपका। तो ये आ गया आपका अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस, कितना आ गया, रुपीज 26,70,000, रुपीज 26,70,000। ठीक है, ये आ गया अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस। अब इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन बाय फैक्टर, तो 15% वो ले रहा है ना, तो देखो ये 26,70 जो अवेलेबल है इसके ऊपर क्या करेगा, 15% का इंटरेस्ट काटेगा, इंटू में 30 डिवाइड बाय 360, देख रहे हो ना, 26,70 इंटू में 15% इंटू में 30 ओपन में 360, ये आपका आ गया 33,375। तो ये आपका आ गया नेट अमाउंट ऑफ एडवांस पेड। ठीक है फ्रेंड, नेट अमाउंट ऑफ एडवांस पेड ये आ गया रुपीज 26,000, 2,63,000, 26,36,625। ठीक है दोस्त, ये आपको आ गया नेट अमाउंट ऑफ एडवांस पेड। आया समझ में। देखो बच्चों को दिक्कत कहां पे आती है, बच्चों को दिक्कत इसी में आता है, यहीं पे मेन बच्चे कच्चा खाते हैं, बाकी तो कर ही लेते हैं, यही मेन दिक्कत आती है, तो यहीं पे आपको फोकस बनाना है। ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ फैक्टरिंग प्रोपोजल। अब मैं जब था ना स्टूडेंट तो मेरे को भी इसी में दिक्कत आती थी, क्या था, अब पेपर पास करना था भैया, तो पेपर तो रट्टा मार के पास हो गए, है ना। अरे रट्टा नहीं मारा दोस्तों, रट्टा तो बिल्कुल भी नहीं मारा, लेकिन हाँ कुछ अलग अलग क्वेश्चनों की खूब दबा के प्रैक्टिस कर लिया, जिससे कि ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई। ठीक है, पर्टिकुलर रुपीज। अब रट्टा जो होता है ना, रट्टा देखो हर सब्जेक्ट में रट्टा नहीं मारा जाता। अब फाइनेंस में क्या रट्टा मारोगे, यहां पर रट्टा मार के काम चला लोगे, नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल है। रट्टा तो थ्योरी की मारी जा सकती है, जैसे कि आईटी हो गया, इसका रट्टा मारो। अब कंपनी लो हो गया, उसको नहीं रेट सकते, वो प्रोविजन है, उसको आपको समझना ही पड़ेगा। देखो तो इवेल्युएशन करते हैं हम लोग, सेविंग टू दी फर्म। बताओ सेविंग क्या क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आपका बच जाएगा 41 का, और बैड डेट लॉस भी बच जाएगा 360 इंटू में 2%, तो ये 720। क्या फ्रेंड, टोटल आ गया 8,60,000। अब देखो कॉस्ट टू द फर्म, तो फर्म का कॉस्ट कितना पड़ेगा, देखो फैक्टरिंग कमीशन 30 इंटू में 360 अपन में 30। अब आप बोलोगे ये उल्टा क्या किया आपने, अरे भैया ऊपर जो फैक्टरिंग कमीशन था ना वो केवल 30 डेज का था, लेकिन हमें तो एनुअल देखना है ना, हमें क्या देखना है, हमें तो एनुअल देखना है। अब फैक्टरिंग तो देखो महीने दर महीना हमेशा एनालिसिस करके तो एडवांस देगा ना आप लोगों को, तो हमें तो एनुअल निकालना है। तो 360 डिवाइड बाय 30 कर दिया फैक्टरिंग कमीशन को, तो ये एनुअल आ गया। और इसी तरीके से जो इंटरेस्ट चार्ज किया था, देखो ये 33,375 का, इसको भी हमने किया 360 से मल्टीप्लाई और 30 से डिवाइड, तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट चार्ज। अब ये आ गया दोस्तों आपका टोटल कॉस्ट 7,60,500, और ये आया आपका नेट बेनिफिट ए माइनस बी, यानी कि 99,500 आपका क्या आ गया, नेट बेनिफिट आ गया। तो बता दो एडवाइज में क्या करोगे, सिंस देयर इज नेट बेनिफिट इन फैक्टरिंग सर्विसेज हेंस इट इज एडवाइजेबल टू एक्सेप्ट दी फैक्टरिंग
फर्म प्रोपोजल। तो यहां पे एडवाइजेबल होगा कि फैक्टरिंग फर्म क्या करे, प्रोपोजल को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, नाउ कम्स नोट नंबर 6। नोट नंबर 6 देखो, फॉरफेटिंग सर्विस, इसको क्या बोलते हैं, फॉरफेटिंग सर्विस। तो फॉरफेटिंग सर्विस जानते हो क्या होता है? देखो अभी आपने ये फॉरफेटिंग सर्विस जो पढ़ा है ना आपने यहाँ पे, तो ये फॉरफेटिंग क्या होता है? ये होता है जो ये फैक्टरिंग आप देख रहे थे ना, तो ये तो हो गया आपका, देखो एक फैक्टर तो होता है डोमेस्टिक, ये डोमेस्टिक फैक्टरिंग है, तो डोमेस्टिक फैक्टरिंग में आप लोग डोमेस्टिक की देखोगे। और एक फैक्टर होता है क्रॉस बॉर्डर फैक्टर, एक ना क्रॉस बॉर्डर फैक्टर भी होता है। तो क्रॉस बॉर्डर फैक्टर में जो इंटरनेशनल सेल आप करते हो ना, उसके लिए होता है। तो ये फॉरफेटिंग सर्विसेज जो है ये एक्सपोर्ट सेल के लिए है। तो यहां जानते हो मेनली दोस्तों क्या होता है, यहां पे जो भी आप लोग सेल, देखो पता क्या होता है, यहां पे आप लोग सेल करते हो किसको, फॉरेनर को एक्सपोर्ट सेल आप करते हो। तो वहां पे जो बायर होगा ना, वो बायर पता क्या करेगा, वो कैश नहीं देगा बल्कि पेंडिंग बेसिस पे आप इसको पेंडिंग कर दोगे पेमेंट, और वो आपको ना इनवॉइस या बिल दे देगा। ठीक है, और आप क्या करोगे, अब आपको पैसा चाहिए तो आप चले जाओ बैंक में और इस इनवॉइस बिल को देकर के डिस्काउंटिंग करा लो। और बैंक क्या करेगा, मैच्योरिटी तक उस बिल को रखेगा, और जब मैच्योरिटी कंप्लीट होगा तो वहां पर बिल ले जा करके उससे फॉरेन कंपनी से रिकवर कर लेगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, फॉरफेटिंग इज ए फॉर्म ऑफ फिनेंसिंग ऑफ रिसीवेबल पर्टेनिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि एक्सपोर्ट सेल। तो फॉरफेटिंग क्या होता है आपका, फिनेंसिंग ऑफ रिसीवेबल पर्टेनिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि एक्सपोर्ट सेल। तो इन दिस बैंक परचेज द बिल या प्रोमिसरी नोट, यही कौन है, फॉरफिटर है। ठीक है, फ्रॉम एक्सपोर्टर विदाउट रिकॉर्ड्स टू द सेलर। तो बिना सेलर के से को कंसिडर की तरफ गए हुए वो एक्सपोर्टर से क्या करेगा, इसको खरीद लेगा। एंड ऑल रिस्क एंड कलेक्शन प्रॉब्लम आर फुली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परचेसर, यानी कि फॉरफिटर। ठीक है, तो जो बैंक जो आपका बिल खरीद रही है ना, तो उसी का सारा कलेक्शन प्रॉब्लम रिस्क जो भी है। एंड हु पे द कैश टू द सेलर आफ्टर डिस्काउंटिंग द बिल नोट, और वो क्या करेगा, बिल को डिस्काउंट करके पेमेंट दे देगा। किसको दे देगा, किसको दे देगा, एक्सपोर्टर को। तो देखो यहां पे एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखोगे ना तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये आपका इंडिया है, यह आपका यूएसए है। ठीक है दोस्त, तो देखिए तो यूएसए में बैठा है XYZ लिमिटेड और इंडिया में बैठा है ABC लिमिटेड। तो देखो ABC लिमिटेड ने एक्सपोर्ट सेल किया XYZ लिमिटेड यूएसए को, और XYZ लिमिटेड ने क्या दिया आपको, बिल या नोट, प्रोमिसरी नोट दे दिया, बिल या प्रोमिसरी नोट आपको दे दिया। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए क्या होगा, यहां पे खेल क्या खेला जाएगा। अब ABC लिमिटेड को तो पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो जा करके वो ना ये बिल प्रोमिसरी नोट जो है ना, इसको डिस्काउंट करा लेगा। डिस्काउंटिंग द बिल प्रोमिसरी नोट किससे, फॉरफिटर बैंक से, यानी कि ICICI। ठीक है दोस्तों, बता दो, अरे बता दो, अरे बता दो। तो फॉरफिटर बैंक जो है ना ICICI, तो उससे इस बिल को डिस्काउंटिंग करा लेगा, और ये बैंक क्या करेगा, बैंक पेमेंट दे देगा। किसको पेमेंट दे देगा, किसको, ABC लिमिटेड को। ठीक है, और अब क्या होगा, फॉरफिटर यानी कि ये जो ICICI बैंक है ना, ये प्रेजेंट करेगा टू XYZ लिमिटेड एट द मैच्योरिटी पे क्या, ये बिल प्रोमिसरी नोट। टिल मैच्योरिटी बिल इज हेल्ड बाय फॉरफिटर बैंक, और जब तक मैच्योर नहीं होता तो जो बिल होगा ना वो फॉरफिटर बैंक के अपने पास रखेगा। अब आया समझ में आपको ये कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट को मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो एक डायग्राम को थ्रू मैंने यहाँ पर सप्लीमेंट कर दिया, अब आपको समझ में आ गया होगा। आइए, ठीक है, तो ये है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपका फॉरफेटिंग सर्विस आपके स्टडी मटेरियल में। आया समझ में, चलिए देखो अब हम देखते हैं नोट नंबर 7, ये है डेटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब डेटर ना, तो डेटर से रिलेटेड, जैसे इन्वेंट्री में मैंने आपको इन्वेंट्री टर्नओवर बताया, तो यहाँ डेटर में आप लोगों को मैं डेटर टर्नओवर भी यहीं पे आप लोगों को बता देता हूं। तो देख लो डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होता है, तो देखो इट मेजर कंपनी इफेक्टिवनेस एज टू हाउ इट रिकवर्स इट्स रिसीवेबल। तो ये कंपनी के इफेक्टिवनेस को मेजर करता है कि कंपनी कैसे अपने रिसीवेबल को रिकवर करती है। एंड इट मेजर नंबर ऑफ टाइम्स इन अ ईयर
कंपनी इज रिकवरिंग इट्स रिसीवेबल। और ये क्या मेजर करता है? नंबर ऑफ टाइम मेजर करता है कि कंपनी कैसे रिकवर करती है अपने डेटर को। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज डेटर, क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज डेटर। और डेटर कलेक्शन पीरियड आप कैसे निकालते हो? 360 डेज अपॉन में डेटर टर्नओवर रेशियो। और डेटर कलेक्शन पीरियड क्या बताएगा? ये बताएगा टेल्स अबाउट क्रेडिट पीरियड अलाउड टू दी डेटर, टेल्स अबाउट क्रेडिट पीरियड अलाउड टू दी डेटर। और जबकि डीटीआर क्या दिखाएगा? डीटीआर आपको दिखाएगा नंबर ऑफ टाइम्स यू आर गोइंग टू रिकवर फ्रॉम दी रिसीवेबल। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका डेटर टर्नओवर मैनेजमेंट, डीटीआर यानी कि रिसीवेबल मैनेजमेंट। ठीक है, आया समझ में? तो वर्किंग कैपिटल के दो टॉपिक, ये सारा ना जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारे वर्किंग कैपिटल के ही पार्ट हैं। समझ जाना इस चीज को, भूलना मत। ये सारा पार्ट किसका है? वर्किंग कैपिटल का। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं सब वर्किंग कैपिटल का ही पढ़ रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल में एक इन्वेंट्री का मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया, और ये आपका हमने डेटर पढ़ लिया। ठीक है, थैंक यू। लिख दूं? एक ये लो, एक हंसता हुआ चेहरा भी बना देते हैं। ये तो रोता हुआ बन गया। ये लो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अपना रिसीवेबल मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसके नेक्स्ट में मैं आप लोगों को कराऊंगा कैश मैनेजमेंट। ठीक है, कैश मैनेजमेंट एंड क्रेडिटर मैनेजमेंट। तो ये कंप्लीट करके फिर हम लोग चलेंगे वर्किंग कैपिटल के फिनांसिंग की तरफ। और टिल देन आप लोगों को क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था ना, पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 28 तक आप लोगों को अपने स्टडी मटेरियल का पढ़ के कंप्लीट रखना है। उसमें मैं कुछ नहीं बताने वाला, बहुत ही सिंपल थ्योरी है, आप लोग आसानी से उसको कंप्लीट कर लोगे, मुझे पक्का पता है। आप कर लेना उसको। ठीक है दोस्तों, बता दो। चलिए फिर हम सेशन को एंड करते हैं। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले अगर आप भूल गए हो तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें मुझे। ठीक है, चलिए रखता हूँ फिर मैं।